Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to start with the unit of bodybuilding foods and the first topic is pulses. So in pulses, today we are going to learn and discuss about their nutritional composition, what actually are pulses, how do they differ from legumes or beans or lentils, and some anti-nutritional components that are there in the pulses that we eat on a daily basis. So, what are pulses? Some people tends to use pulses, legumes and lentils, these terms interchangeably. कुछ लोग legumes को ही pulses मानते हैं, कुछ लोग pulses को lentils मानते हैं, कुछ लोग beans को भी pulses के समान मानते हैं. But there is a distinct meaning of the legumes and pulses and beans as we call them. A legume is any plant from the Fabaceae family or the Leguminosae family. Fabaceae परिवार या Leguminosae जो group of species हैं उनसे belong करने वाले जितने भी plants हैं जिसमें उनकी leaves, stems, pods यानी फलियां सब सम्मिलित होती हैं, all of them together are called legumes. So any plant from the Fabaceae family or the Leguminosae family are called legumes. So ये एक broader term हो गया क्योंकि हम यहाँ पूरे पौधे को ही legume बुला रहे हैं. Then we have pulse. A pulse is the edible seed from a legume plant. So if you were to discriminate between legumes and pulses, legume is the broader category जिसमें उसकी पत्तियां, stems, overall plant पूरा आता है, और pulse जो है वो legume के अंतर्गत आने वाली एक दूसरी श्रेणी है, एक separate category है जो legumes के ही अंडर आती है. But pulse specifically is the edible seed from a legume plant. यानी पूरे पौधे को जिसको हम legume बुला रहे हैं उसके अंदर जो edible portion है जो हम खा सकते हैं उस edible portion को हम pulse बुलाते हैं. pulses में beans भी आते हैं, lentils भी आते हैं और peas भी आते हैं. यानी legumes जहां एक broad category हो गई उसके अंडर specific हो जाता है pulses which is the edible portion, and this edible portion can further be categorized into beans, peas, lentils. For example, एक मटर की फली यानी pea pod legume कहलाएगा, but the pea inside the pod is a pulse and specifically it's a pea. So pulses are the edible portion. You cannot eat the whole pod, pea pod. So that is the legume. Overall pod can be termed as a legume, but the edible portion, that is the pea inside, is termed as a pulse, and specifically it comes under the category of peas like chickpeas or dry peas. Okay, and lentils. What are lentils? Lentils are dals जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में दालों के नाम से जानते हैं, और पल्सेस में शायद ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाले आइटम्स में से है. सो द ब्रॉड कैटेगरी इज लेग्यूम्स जिसके अंदर पूरा पौधा आता है, the edible and non-edible portion both. Then specifically the edible portion of the legume is called pulses, or pulses is a broad category for beans, peas and lentils. So let's take some examples. Legume, अगर मैं पूरे चावल की पूरे मटर की फली को बोलूं या मटर के पौधे को बोलूं तो ये लेग्यूम्स हैं. ये पूरे पौधे को क्यों बुलाते हैं हम लेग्यूम्स? क्योंकि एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी में मददगार होता है ये. लेग्यूमिनस क्रॉप या लेग्यूम क्रॉप, एक क्रॉप में पौधे का सारा हिस्सा आता है, इसलिए हम लेग्यूमिनस प्लांट या लेग्यूमिनस क्रॉप को एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी में पूरे पौधे को लेग्यूम बुलाते हैं. उसके बाद अगर आपको पल्सेस का एग्जाम्पल चाहिए तो आप कोई भी बीन, लेंटिल या पी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो आपका अरहर की दाल हो, उड़द की दाल हो, साबुत मूंग हो, या फिर साबुत चना हो, या फिर छोले हो, राजमा हो. ऑल ऑफ दीज आर pulses. But to be specific, then we come to beans.
सो बीन्स क्या हो सकते हैं? मूंग बीन्स हो सकते हैं, राजमा हो सकता है, फ्रेंच बीन हो सकता है. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बीन्स. देन वी कम टू लेंटिल्स. लेंटिल्स हमारी चने की दाल, काली दाल, मूंग की दाल, कुलथ, उड़द की दाल, मसूर की दाल. these all are lentils. Then we come to peas, like हमारे छोले या फिर हमारे मटर या फिर ब्लैक आइड पीस, द चवला या जिसको आप लोबिया भी कहते हैं. तो ये हो गए हमारे लेग्यूम्स, पल्सेस, लेंटिल्स, पीस, बीन्स के बीच का डिफरेंस. Now we move on to the most important category or most important aspect of pulses. That is the nutritional composition. India is primarily a vegetarian population. यहाँ पर हम ज़्यादातर लोग नॉन वेज की बजाय वेजिटेरियन सोर्सेज से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. पल्सेस हमारे फूड में एक इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें सप्लाई करता है और स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें प्रोटीन सप्लाई करता है. So let's have a look at the specific nutrients that are being supplied by pulses. Starting with energy. जब हम nutrients की बात करते हैं, in the last interaction we had discussed that nutrients की जब हम बात करते हैं तो we are talking about energy, protein, fat, minerals, vitamins, water. So जब भी हम किसी भी फूड आइटम के न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट these particular nutrient categories and then we will discuss some specific nutrients which come under these broader categories. हम भोजन सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए करते हैं. बिना फ्यूल के our body is of no use to us because any or every system in our body runs with the help of the fuel. And what is that fuel? That fuel is our energy. Pulses also supply energy equivalent to that of cereals. यानी 100 ग्राम अगर आपने अनाज खाया है तो जितनी एनर्जी आपको मिलेगी उतनी ही 100 ग्राम पल्स खाने से भी मिलेगी, which is near about 340 calories. It is an average figure. Different kinds of pulses provide different types, different quantities of calories, but the figure would be more or less the same. But हम pulses को primarily energy providing food item नहीं मानते हैं. आपको मन में ये सवाल आएगा कि cereals और pulses जब पर 100 ग्राम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है तो हम सीरियल को तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड में मानते हैं और पल्सेस को हम एनर्जी गिविंग की बजाय बॉडी बिल्डिंग फूड्स में मानते हैं. द रीजन इज आर डाइटरी पैटर्न, जहां सीरियल्स की सर्विंग या सीरियल्स की क्वांटिटी ऑफ इनटेक इज मच हायर. वी टेक अप अराउंड 10 to 11 servings of cereals in a day, बट पल्सेस की सर्विंग हमारी पूरे दिन में 2 या 2 से कम ही रहती है. तो ऑल्दो पर 100 ग्राम जो क्वांटिटी है उसमें एनर्जी तो हमें समान मिल रही है, बट ओवरऑल इनटेक हमारा सीरियल्स के कंपैरिजन में पल्सेस का बहुत कम होता है. इसलिए हम पल्सेस से ज़्यादा एनर्जी डिराइव नहीं कर पाते क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इनटेक इज वेरी लो एज कंपेयर टू दी सीरियल्स. But for your knowledge, you must know that per 100 grams pulses provide somewhere around or on an average 340 calories. Moving on to the most important part or the most important nutrient for which we understand or we think of pulses as an important food item or food group, that is protein content. Pulse का इनटेक का हीरो है प्रोटीन. पल्सेस की सिग्निफिकेंस प्रोटीन के पीछे ही है. Why? Because we, being a primarily vegetarian population, we do not eat meat or eggs or poultry or the primary sources of protein. So, इस केस में हमारे पास पल्स ही एक जरिया रह जाता है to supply us with the necessary protein that our body needs. पर
ये प्रोटीन का कंटेंट तो बाकी फूड आइटम्स के कंपैरिजन में कंसिडरेबल है. However, as nutrition students, we should also understand that it is not just the quantity that matters of a nutrient. It is also the quality that makes a big difference in the way the body is going to perceive our nutrient in the body, in our system. प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है उस पर निर्भर करेगा कि आपके शरीर को आवश्यकता अनुसार प्रोटीन मिल भी रहा है अथवा नहीं. प्रोटीन की सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है. Pulses, being an important source of protein, give about 20 to 25% of protein, which is double the amount than what is found in cereals. जहां cereals और pulses सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सप्लाई करते हैं पर 100 ग्राम, पर प्रोटीन की अगर बात करें तो पल्सेस डबल प्रोटीन क्वांटिटी सप्लाई करता है सीरियल्स के कंपैरिजन में. अब प्रोटीन जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होते हैं. प्रोटीन की क्लासिफिकेशन का एक तरीका होता है प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़कर चेन बनाकर प्रोटीन्स बनाते हैं. आवर बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस सम अमीनो एसिड्स जो हमारे शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं और उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जिसे हम अनावश्यक अमीनो एसिड भी कह सकते हैं. ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड, बट सिंस आवर बॉडी कैन वेरी वेल प्रोड्यूस दोज अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी, तो हमारे लिए वो उतने आवश्यक नहीं होते. बट जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं और वो हमें डाइट से मिलना बहुत जरूरी होता है. कोई भी प्रोटीन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितना एसेंशियल अमीनो एसिड सप्लाई कर रहा है. और अनफॉर्चुनेटली पल्सेस प्रोटीन कंटेंट तो अच्छा देते हैं, क्वांटिटी तो अच्छी देते हैं, बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कहीं ना कहीं थोड़ा डेफिशिएंट है. इसलिए हम बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है पल्सेस को नहीं मानते. Why do we think that pulses are supplying maybe a bit low quality protein? Because they are essential, they are deficient in one essential amino acid specifically, which is called methionine. You should always remember the amino acid that is deficient in pulses, that is methionine. It is an essential amino acid. Our body cannot produce this amino acid. So we need to have this from our diet. But at the same time, methionine is primarily deficient in majority of the pulses, but there are some pulses which are also deficient in tryptophan, which is another essential amino acid. However, we can still count on pulses for supplying us with some other good amino acid, specifically lysine, which is an essential amino acid. लाइसिन एक ऐसा एसेंशियल अमीनो एसिड है जो पल्सेस भरपूर मात्रा में देते हैं बट सीरियल्स नहीं दे पाते. हाउएवर सीरियल्स जो है वो मिथियोनिन में रिच होते हैं. सो अगर हम सीरियल और पल्सेस को मिक्स करके खाएं तो सीरियल से हमें मिथियोनिन मिल जाएगा जो पल्सेस नहीं देता, और पल्सेस से हमें लाइसिन मिल जाएगा जो सीरियल नहीं देता. अब हमारी बॉडी को सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड से मतलब है जहां तक प्रोटीन की बात आती है. कैसे खा रहे हैं, किन दो चीजों को मिला के खा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. सो पल्सेस इन इटसेल्फ अकेले दे माइट नॉट सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोटीन, बट pulses when combined with cereals, जिस phenomenon को हम कहते हैं mutual supplementation. Mutually ये दोनों मिलके अपनी weaknesses को, deficiencies को खत्म करते हैं और strengths को मिला के और एक complete protein बनाते हैं. So pulses being deficient in methionine can supply lysine, but cereals are deficient in lysine can supply methionine. So together they give a very good quality protein. इस बात से पल्सेस की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि
इंडियन डाइटरी पैटर्न में सीरियल पल्स का कॉम्बिनेशन हम सब जानते हैं, हम सब ने खिचड़ी खाई है और हम सबको पता है कि खिचड़ी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नाउ वी नो हाउ. Then, some of the legumes are also better in isoleucine, leucine, phenylalanine, threonine and valine. These all are amino acids. ये वही अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, और हम पढ़ भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स रहे हैं जिसका सबसे अहम हिस्सा है पल्सेस. हमारी चने की दाल which we call Bengal gram contains high amounts of arginine and tyrosine. लाइसिन में हमारे पल्सेस रिच हैं ही, और these are some of the other amino acids that are rich in that are found in legumes. जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू की, तो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन बेसिकली एक ऑफ एनी फूड आइटम बेसिकली एक ऐसा पैरामीटर है जिस पर हम प्रोटीन क्वालिटी को जज करते हैं. एग इज फाउंड टू हैव द हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू बिकॉज इट सप्लाइज द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन. पल्सेस में बायोलॉजिकल वैल्यू को देखें तो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन सप्लाई होता है बाय चिकपी यानी हमारा छोला, पी दैट इज ड्राइड पी, मटर, and cowpea that is our lobia और चवला. So चवला, मटर और छोले हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन सप्लाई करते हैं if we compare them to other pulses like peanuts or pigeon peas, soybean, green gram, etc. Biological value again is the parameter जिससे हम प्रोटीन क्वालिटी को जज करते हैं. Now we move on to some other nutrients जो कि pulses में supply होते हैं, like carbohydrates. Carbohydrates we all know is responsible for providing us with this much needed energy. Pulses contain 50 to 60% starch. इस स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में आती हैं सॉल्युबल शुगर्स, फाइबर्स, सम अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एनर्जी नहीं देते, सिर्फ डाइट में बल्क को बढ़ाने का काम करते हैं. जो अनअवेलेबल शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पल्सेस में जो पाए जाते हैं उसमें से ज्यादातर होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पल्सेस के खाने के बाद फ्लैटुलेंस क्रिएट करते हैं. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट नो व्हाट इज फ्लैटुलेंस. सो पल्सेस में खाने के बाद फ्लैटुलेंस का कारण है द प्रेजेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स इन पल्सेस. ओलिगोसैकेराइड्स आर व्हाट? दे आर सम ऑफ द अनअवेलेबल शुगर्स व्हिच डू नॉट रियली प्रोवाइड अस विथ एनर्जी. अगर आप पल्सेस को फर्मेंट कर दें, यानी खमीर उठा दें या उनको अंकुरित कर दें, जर्मिनेट कर दें, सोक करें, तो भी ओलिगोसैकेराइड्स का कंटेंट थोड़ा कम हो सकता है. यानी साबुत मूंग की सब्जी और अंकुरित मूंग की सब्जी दोनों में से कम फ्लैटुलेंस कौन करेगा? अंकुरित मूंग की सब्जी, because germination tends to reduce the quantity of oligosaccharides which causes flatulence. Moving on to another important nutrient that is lipids, और जिनको आप मानते हैं fats. Lipids is the broader category जिसके अंदर fats आते हैं. Now, on a moisture free basis, यानी बिल्कुल ड्राइड फॉर्म में पल्सेस अपने वेट का 1.5% लिपिड्स सप्लाई करते हैं. बट इसमें नोट करने वाली या ध्यान रखने वाली बात यह है कि gradually when you will study you will realize that fats are of various types. There are some good fats, there are some bad fats, there are some essential fatty acids, and what do we need in our diet? We need the good fats like the PUFAs. What is a PUFA? PUFA is poly unsaturated fatty acids.
These polyunsaturated fatty acids are found to have good effect over our body. They do not cause heart problems, they do not cause strokes. However, they help in the production of some very important organs, न्यूरॉन्स की फंक्शनैलिटी के लिए, ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए पूफा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड फॉर्चुनेटली pulses contain high amounts of polyunsaturated fatty acids. सीरियल्स के साथ साथ पल्सेस जो हैं वो भी किसी भी व्यक्ति को एसेंशियल फैटी एसिड सप्लाई करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं. जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से सप्लाई करते हैं पल्सेस. दे सप्लाई लिनोलिक एसिड एंड in some way they also supply linolenic acid. These are very important essential acids, fatty acids to our body. However, ये लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड आमतौर पर पल्सेस से निकले हुए, दलहन से निकले हुए तेल से हमें ज्यादा मिलते हैं. जैसे सोयाबीन से हम सोयाबीन का तेल निकालते हैं, तो उसके अंदर द प्रेजेंस ऑफ दीज लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड इज क्वाइट कंसिडरेबल, विच इज गुड फॉर आवर बॉडी. हम फैट्स के बिना अपनी डाइट इमेजिन नहीं कर सकते, बट while we select fats, it is always important to note कि polyunsaturated fatty acids, essential fatty acids कौन से फैट्स में मिल रहे हैं, कौन से फैट सोर्सेज में मिल रहे हैं, हमें उनका ही चयन करना चाहिए. Then we come to yet another category, which is minerals and vitamins. Our body would not be able to produce, good quality bones or for the carbohydrate metabolism to take place or the protein metabolism to take place without minerals or vitamins. Which minerals do we really get from our pulses? We get good amounts of magnesium, calcium, zinc, iron, potassium, phosphorus. However, here the anti-nutritional factors interfere greatly. क्या होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम शॉर्टली, बट अभी के लिए एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का लिटरल मीनिंग होता है एक ऐसे तत्व जो पोषण के विपरीत जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के विरुद्ध कार्य करते हैं. और जहां तक मिनरल्स की बात है, सिर्फ किसी भी भोज्य पदार्थ में मिनरल्स की प्रेजेंस हो जाने भर से ही उसका अब्जॉर्प्शन हम इंश्योर नहीं कर सकते. आपने पल्सेस खाई, उसके अंदर आयरन है, पर आपके शरीर को वो आयरन मिल जाएगा, आपका शरीर उस आयरन को अब्सॉर्ब कर लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. दे डू नॉट लेट the nutrients that are present in our food items to be absorbed easily. Hence, they are called anti-nutritional factors. When we talk about vitamins, legume seeds are excellent sources of B complex vitamins, particularly B1, which is thiamine, then folic acid and pantothenic acid. सीरियल्स की तरह वो विटामिन ए और सी के अच्छे सोर्सेस तो नहीं होते, बट यदि आप दालों को, दलहन को अंकुरित कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, तो विटामिन ए और सी का कंटेंट आपको मिलेगा. Now let's talk about the anti-nutritional or the toxic factors in our pulses. यहाँ पर इन फैक्टर्स के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को ही देख लें या न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को ही देख लेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी. बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ some minerals or some nutrients in a food item doesn't guarantee कि आपकी body would be able to absorb those nutrients. So what are these anti-nutritional and toxic factors present in pulses? The first one is trypsin inhibitors. ये आपकी चने की दाल, काउपी, सोयाबीन आदि में पाए जाते हैं. ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स प्रोटीन ही होता है, बट ऐसा प्रोटीन जो ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम को फंक्शन नहीं करने देता.
दिस ट्रिप्सिन इज फाउंड इन आवर गट, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि खासकर प्रोटीन के ही डाइजेशन में कार्य करता है। अब एंजाइम्स आमतौर पर प्रोटीन बेस्ड एंटिटीज ही होती हैं जो स्पेसिफिक कार्य करती हैं हमारे शरीर में, ट्रिप्सिन बीइंग वन सच एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन in our body and is available in the gut. But ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स इस ट्रिप्सिन को कार्य नहीं करने देते, और अगर हमारे शरीर में, हमारी गट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ट्रिप्सिन ढंग से कार्य नहीं करेगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगा, और यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो शरीर को प्रोटीन मिलेगा भी नहीं, इवन इफ यू हैव ईटन प्रोटीन रिच फूड्स। सो दीज ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स अगर कंज्यूम किए जाएं तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं होने देंगे, और हमारी डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट हो जाएगी, हमारी बॉडी प्रोटीन में डेफिशिएंट हो जाएगी। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स को हम इजीली इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं बाय मे बी यू कैन गिव देम गुड हीट ट्रीटमेंट। दालों को अच्छा उबाल के अगर आप सेवन करेंगे तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। खास तौर पर सोयाबीन और राजमा आदि में भी जो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि these specifically interfere with the digestion and utilization of proteins. Then we come to lethyrogens. What are lethyrogens? Lethyrogens basically ऐसे substances हैं जो कि लेथायरस सटाइवस के कंजम्पशन से या लेथायरस सटाइवस में पाए जाते हैं। एक्सेसिव कंजम्पशन यदि केसरी दाल, जिसे हम लेथायरस सटाइवस बोलते हैं, उसका किया जाए तो लेथायरोजेंस की सप्लाई बॉडी में होती है, जिससे होती है नर्वस डिजीज लेथायरिज्म, विच इज अ क्रिपलिंग डिजीज। क्रिपलिंग यानी इससे शरीर का मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। However, the thing worth noting is that केसरी दाल के एक्सेसिव कंजम्पशन होने पर ही लेथायरिज्म की सिचुएशन अराइज होती है। केसरी दाल वैसे आमतौर पर हमारी डाइट में सम्मिलित नहीं की जाती, परंतु ये बहुत ज्यादा चने की दाल की तरह दिखाई देती है, और चने की दाल में एडल्ट्रेंट के रूप में, मिलावट के रूप में ये कई बार ऐड की जाती है, जिसके कारण इसका सेवन हो सकता है। The third and fourth chief anti-nutritional factor found in pulses are tannins and phytates, and in some way oxalates as well. Tannins क्या करते हैं? ये पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी लेग्यूम के छिलके में पाए जाते हैं, सीड कोट में पाए जाते हैं। टैनिन्स जो हैं वो आयरन के साथ बाइंड करके आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते, अवशोषण को नहीं होने देते। टैनिन्स हमारे सीड कोट में पाए जाते हैं लेग्यूम्स के, और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। हमारी डाइट वैसे भी आयरन में काफी हद तक डेफिशिएंट होती है, until unless we pay special attention to some good iron sources and include them in our diet. बट जो भी थोड़ा बहुत आयरन हमें हमारे फूड से मिलता है वो भी अब्जॉर्प्शन में बड़ी दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टैनिन्स एंड फाइटेट्स। व्हाई? बिकॉज ये आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद ये एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती और अब्जॉर्ब नहीं करती। सो इट बाइंड्स विथ आयरन एंड रेंडर्स देम अनअब्जॉर्बेबल। Then it also interferes with trypsin, like trypsin inhibitors. Tannins भी ट्रिप्सिन को कार्य नहीं करने देता और प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को इनडाइजेस्टेबल बना देता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कम कर देता है बाय इंटरफेयरिंग विद ट्रिप्सिन एंड ऑल्सो अल्फा अमाइलेज। ये दोनों एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Then what are phytates? Phytate is yet another type of anti-nutritional factor which also, along with oxalates and
crude fiber, it interferes with mineral absorption, खासकर आयरन और कैल्शियम absorption को ये negatively affect करते हैं, interfere करते हैं. Phytates, oxalates, tannins, ये जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, इन सब का तोड़ है germination, fermentation. So these good cooking activities और cooking methods like for अंकुरण और खमीर उठाना कई हद तक हमारे फूड में प्रेजेंट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को कम कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. So that's all for today's class. Today we learned about what pulses are, how do they differ from legumes, what is the distinct differentiation between legumes, pulses, beans, peas and lentils. Then we learned about some chief nutrients that are supplied by pulses in our diet, and we also learned about some anti-nutritional factors. That's all for today's class. Thank you all very much.